ٹرو مین عمران سیریز۔ عمران صوفے پر نیم دراز کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، ارے جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، یہ گھنٹی کیوں بج رہی ہے؟ عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر زور سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ آپ جوزف سے پوچھیں، میں نے تو کوشش کی تھی کہ بل نہ ادا کیا جائے تاکہ یہ منحوس ٹیلی فون کٹ جائے اور اس کی گھنٹی کی کرخت آواز سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے، مگر وہ جا کے بل بھر آیا۔ سلیمان کی دروازے سے جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ گھنٹی اس دوران مسلسل بجے جا رہی تھی۔ ارے تم گھنٹی کی آواز کو کرخت کہہ رہے ہو؟ بڑے بدذوق ہو۔ وہ ہمارے شاعر حضرات تو گھنٹیوں کی آواز پر مر مٹتے ہیں، کسی محترمہ کی خوبصورت آواز کو ہمیشہ گھنٹیوں کی آواز سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، ایسی آواز جیسے دور مندر میں کانسی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ عمران نے بڑے خوشگوار موڈ میں جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کانسی کی گھنٹیاں ہوں گی، یہ فولادی گھنٹی ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ کیا مصیبت ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ 3 بار گھنٹی بجنے کے باوجود اگر ریسیور نہ اٹھایا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جسے آپ کال کر رہے ہیں وہ آپ کی کال سننا پسند نہیں کرتا؟ آپ ہے کہ ریسیور کان سے چپکائے مہاتما بدھ کی طرح بیٹھے ہیں، ریسیور نہیں رکھا جا سکتا کریڈل پر؟ سلیمان نے بڑے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران جو بدستور کتاب پڑھنے میں مصروف تھا بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہارا دماغ اب مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، اب تمہارا یہی علاج ہے کہ تمہیں پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف سے سپر فیاض کی حلق کے بل چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کو کس پاگل کو خانے سے فون کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یو شٹ اپ نان سینس بلڈی فول، احمق بدتمیز، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ فیاض کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کا غصہ اب اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اوہ، بڑا لمبا نام ہے آپ کا، نان سینس آپ کی آیا نے رکھا ہوگا، بلڈی فول یقیناً انگریزی کے استاد کا دیا ہوا لقب ہوگا، احمق آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا ہوگا، اور بدتمیز آپ کے والد محترم کا خاندانی لقب ہوگا۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک ہو، خاندانی لوگوں کے واقعی ایسے ہی نام ہونے چاہیے۔ مسٹر نان سینس بلڈی فول، احمق بدتمیز صاحب، ویسے فرمائیے کس کتے نے آپ کو کاٹا تھا کہ آپ کو اتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے دوسری طرف سے تیز تیز سانسوں کے ساتھ ہی کریڈل پر ریسیور پٹکنے کی آواز سنائی دی اور سلیمان نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ میں مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کے دوست ہیں، آپ ہی سنبھالیے، ویسے ان کا مستقل علاج کرا لیجیے تو بہتر ہے، سلیمان نے جلدی سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے کون دوست، کس کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے اس نے فون پر ہونے والی بات چیت سرے سے سنی ہی نہ ہو۔ ایک ہی تو آپ کے دوست ہیں، فیاض صاحب، جنہیں کاٹا تو پاگل کتے نے، لیکن شامت میری آ گئی ہے۔ آپ جتنے عرصے ملک سے باہر رہے ہیں اس نے فون کر کے میری جان عذاب میں ڈال دی تھی، اب سنبھالیے اسے۔ سلیمان کی راہداری سے آواز سنائی دی اور پھر بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی اور عمران سمجھ گیا کہ سلیمان اب فرار ہونے میں عافیت سمجھی ہے، ورنہ جس انداز کی گفتگو اس نے فیاض سے کی ہے اس کے بعد فیاض نے پورا ریوالور اس پر خالی کر دینا ہے۔ اور عمران جانتا تھا کہ سلیمان نے جان بوجھ کر ایسے فقرے کہہ کر فیاض سے پچھلی ساری کالوں کا انتقام لیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سلیمان نے اس کی عدم موجودگی میں ایسے فقرے نہ کسے ہوں گے، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ فیاض نے اسے گولی مارنے سے نہیں ٹلنا، لیکن اب اس کے واپس آنے کے بعد ظاہر ہے وہ شیر ہو گیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے دوبارہ کتاب پر نظریں جما دی، لیکن ابھی اس نے ایک صفحہ پلٹا ہی تھا کہ یکلک دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آواز راہداری میں سنائی دی۔ کہاں ہے وہ باورچی کا بچہ؟ میں اسے گولی اسے چھلنی کر دوں گا۔ فیاض کی غصے میں دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے گزر کر سیدھا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے لیے چائے ضرور بناتے لانا، وہ باورچی اور اس کا ہونے والا بچہ فی الحال چھٹی پر ہیں۔ عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اونچی آواز میں کہا، میں اسے گولی مار دوں گا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، وہ ہے کہاں؟ دوسرے لمحے فیاض کی دھاڑتی ہوئی آواز ڈرائنگ روم میں سنائی دی۔ ارے تم سپر فیاض، ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ کسی کو دکھا لینا تھا، بڑے ماہرین پڑے ہیں دارالحکومت میں۔ عمران نے چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سپر فیاض کی حالت اس وقت دیکھنے والی تھی، چہرہ غصے کی شدت سے نہ صرف بھگوکا ہو رہا تھا بلکہ گال اس بری طرح پھڑک رہے تھے جیسے بڑے فنکارانہ انداز میں طبلہ بج رہا ہو۔
आंखों से शोले निकल रहे थे, हाथ में सरकारी रिवॉल्वर था। क्या मतलब, क्या दिखा लेना था? तुम बताओ, वो तुम्हारा बावर्ची का बच्चा है कहाँ? आज मैं उसे गोली मार कर रहूँगा। उसकी ज़बान अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। फयाज ने बुरी तरह पैर पटकते हुए कहा। बावर्ची का बच्चा? अरे तो मेरी मुल्क से गैर हाजिरी के दौरान सुलेमान ने शादी भी कर ली और उसका बच्चा भी हो गया, और बच्चा भी ऐसा कि पैदा होते ही बोलने भी लग गया, और बोलता भी ऐसा है कि सुपर फयाज जैसे इंतहाई ठंडे दिमाग के अफसर के लिए उसकी ज़बान नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। हैरत है। ओह, इसलिए सुबह से छुट्टी लेकर गया हुआ है। आए, मैं पूछता हूँ उससे। इमरान के लहजे में शदीद हैरत थी। सुबह का गया वो है? क्या मतलब? अभी मैंने फ़ोन किया है उसको, उसने तो मुझसे बदतमीज़ी की है और तुम कह रहे हो कि सुबह से छुट्टी पर गया वो है। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। बताओ, है कहाँ वो? फयाज ने इमरान की बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक मिनट, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चलो, तुम नहीं दिखा सकते तो मैं बात कर लेता हूँ। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और रिसीवर उठाकर इंक्वायरी के नंबर डायल करने लगा। किसे फ़ोन कर रहे हो? फयाज ने हैरत भरी लहजे में कहा। यस, इंक्वायरी प्लीज़। उसी लम्हे इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। देखिए, मेरे दोस्त का साउंड बॉक्स ख़राब हो गया है। आप किसी ऐसी वर्कशॉप का नंबर बता दें जहाँ उसका साउंड बॉक्स मरम्मत हो सके। इमरान ने बड़े बाखलाक लहजे में कहा। लेकिन उसी लम्हे फयाज ने क्रेडल पर हाथ मारकर राब्ता ख़त्म कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फयाज ने बुरी तरह होठ काटते हुए कहा। ये बकवास नहीं है, वाकई तुम्हारा साउंड बॉक्स ख़राब हो गया है। मुझे तो मालूम है कि तुम बहुत आहिस्ता बोलने के आदी हो, लेकिन साउंड बॉक्स की ख़राबी की वजह से तुम्हारी आवाज़ इतनी ऊंची निकल रही है कि मेरे कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए हैं। फिक्र ना करो, ऐसी मरम्मत करवाऊँगा साउंड बॉक्स की कि तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए लोगों को आलाए समात इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। तो तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए जब तुम्हारा बावर्ची मेरी बेइज्जती करे तो साउंड बॉक्स भी मेरा ही ख़राब है। फयाज ने होठ काटते हुए कहा, लेकिन इस बार उसका लहजा कदरे नरम था। मेरा बावर्ची और तुम्हारी बेइज्जती करे? अरे मैं उसकी टांगें न चीर कर रख दूँ? उसका क्या हक है कि मेरे दोस्तों की बेइज्जती करता फिरे? उसने बकाया तनख्वाह मुझसे लेनी है, मेरे दोस्तों का इसमें क्या कसूर? चलो, मैं तो अपनी बेइज्जती मजबूरन बर्दाश्त कर ही लूँगा, क्योंकि गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी को बेइज्जती बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, लेकिन मेरे दोस्तों की बेइज्जती नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान ने इस बार बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, इसका मतलब है उसने तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती की है। इस वक्त तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब तुम बातें बना रहे हो। और सुनो, आइंदा मेरे सामने ये गरीब वगैरह की बात ना करना। मैंने कसम खाई है कि अब तुम्हें खोटा से कभी न दूंगा। फयाज ने सोफे पर बैठे हुए बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। तो मैं कब तुमसे मांग रहा हूँ? मैंने भी कसम खा ली है कि भूखा मर जाऊँगा, खाने की बजाय बावर्ची सी जूतियाँ खानी पड़े तो खा लूँगा, लेकिन अब दोस्तों से रकम ना मांगूँगा। मुँह टेढ़ा करना पड़ता है रकम मांगते हुए, और फिर भी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तुम खुद देखो। हालांकि कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि सुलेमान नाराज़ होकर चला गया और धमकी दे गया कि अगर उसकी रकम का बंदोबस्त 24 घंटों में ना हुआ तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा और मेरे कपड़े सरेआम नीलाम कराएगा। अब दोपहर होने वाली है, लेकिन मैंने मांगी ये रकम तुमसे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि फयाज से ले लो, वो दोस्त है, इनकार थोड़ी करेगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि नहीं, अब मैं उससे भी नहीं मांगूंगा। मैंने कसम खा ली है। कौन बातें सुने? बहरहाल तुम बताओ, ठीक हो? भाभी सलमा और बच्चों का क्या हाल है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, और फयाज इस बार बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे बड़ा अदाकार आज तक नहीं देखा। किस तरह मासूमियत से बात कर रहे हो, जैसे वाकई रात के भूखे हो। फयाज ने हंसते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम हंस सकते हो, आखिर दोस्त हो मेरे। और भी जितना चाहे हंस लो, उड़ा लो मेरी गुर्बत का मजाक, कह लो इसे अदाकारी। इमरान ने इतना लंबा सांस लेते हुए इस कदर हसरत भरे लहजे में कहा कि फयाज का चेहरा यकलक बदल गया। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? नहीं, अभी चंद मिनट पहले मेरी सुलेमान से बात हुई है। फयाज ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हुई होगी, ज़रूर हुई होगी। अब मैं तुम्हें कितना ही यकीन दिला दूँ कि सुलेमान तो सुबह से चला गया है और फ़ोन यहाँ मेरे सामने पड़ा है, उसकी घंटी तक नहीं बजी, लेकिन तुमने कहाँ यकीन करना है? ये भी मेरी अदाकारी होगी
कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम कह सकते हो फैयाज़, गरीब का सच भी झूठ बन जाता है और अमीर का झूठ भी सच होता है। ठीक है। इमरान ने इस तरह लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा कि उसके चेहरे पर इस कदर बेचारगी और बेबसी के तासुरात थे कि फैयाज़ के होंठ भीग गए। तुम अभी कह रहे थे कि तुम मुल्क से बाहर गए थे। मैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तुम्हारा पूछ रहा हूँ, हर बार यही जवाब मिलता है कि मौजूद नहीं है। क्या वहाँ मिट्टी चाटने गए थे? गरीब आदमी इस तरह दूसरे मुल्कों में पहुँच जाते हैं बगैर सरमाए के? फैयाज़ ने तेज़ लहजे में कहा। मैंने सुना था कि दरिया पार कर लो तो बदबख्ती का साया दूर हो जाता है। मैंने सोचा कि मुझ पर बदबख्ती का साया क्या मुजस्सम बदबख्ती छाई हुई है, इसलिए मुझे दरिया के बजाय समुद्र पार करना चाहिए। बड़ी मिन्नतें करके एक हमसाये से किराया मांगा और जहाज़ में बैठकर ग्रेटलैंड चला गया, लेकिन शायद बदबख्ती जहाज़ से ज़्यादा ताकत परवाज़ रखती है, वहाँ मुझसे भी पहले पहुँच गई। नतीजा ये कि वहाँ जितने वाकिफ़ थे सब ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। भूखा प्यासा फिरता रहा। आखिर पेट भरने की एक तरकीब समझ आई कि एक बड़े से होटल में घुस गया। वहाँ बेरे को ऑर्डर देकर खाना मंगवाया, खूब डटकर खाया। जब बिल आया तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। होटल वालों ने मुझे पकड़ लिया। पहले तो खुद थप्पड़ मारे, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने फ्रॉड का मुकदमा बनाकर अदालत में पेश कर दिया। जज ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उसे भी साफ बता दिया कि मैं 3 दिन से भूखा था, इसलिए मैंने पेट भरने के लिए ये चक्कर चलाया है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि तुमने जानबूझकर धोखा किया है, लिहाजा उसने मुझे 1 हफ्ते की कैद बामुशक्कत की सज़ा दे दी और मैं जेल पहुंच गया। वैसे यार ये ग्रेटलैंड वाले हैं बड़े ईमानदार। सारा हफ्ता उन्होंने मुझसे काम कराया। कपड़े की मिल लगी हुई थी, वहाँ कपड़ा बुनता रहा। 1 हफ्ते बाद जब मेरी मजदूरी काउंट हुई तो वापसी की किराए जितनी रकम हो गई थी। चुनाचा उन्होंने इस रकम की टिकट खरीदी और मुझे जहाज़ पर बिठाया और वापस भेज दिया, और अब मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। तुम बताओ, खैरियत से हो? सलमा भाभी ठीक हैं? बच्चे बखैरियत हैं? इमरान ने अपने बैरून मुल्क जाने की दास्तान सुनाते हुए कहा, और आखिर में वही फ़िक्रे कसे उसके पास मज़ीद बात करने के लिए कुछ रहा ही ना हो। मुझे मालूम है कि तुम सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो। क्या वो सीक्रेट सर्विस का चीफ तुम्हें कुछ नहीं देता तो तुम यूँ भूखे मर रहे हो? फैयाज़ ने होंठ चबाते हुए कहा। वो भी शायद मुकम्मल इंक्वायरी पर तुला हुआ था। अरे तो तुम्हें मालूम ही नहीं? हद हो गई है, ये तो वही शायराना बात हो गई कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, और तुमने शायद वज़ू करने का भी तकल्लुफ़ ना किया होगा। भाई तुम्हारी दोस्ती की वजह से तो ये मुजस्सम बदबख्ती मुझसे चिमटी हुई है कि समुंदर पार कर लेने के बावजूद भी पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हें याद तो होगा कि वो ट्रोमीन वाला केस, उस ज़ख्मी ट्रोमीन को मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया था। बस यहीं से बदबख्ती का आगाज़ हुआ, वरना रोटी तो मिल ही जाती थी, पेट भर ही जाता था। तुम्हारा तो वो बन गया कारनामा, अखबारात में खूब वाह हुई। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? सीक्रेट सर्विस के चीफ साहब सख्त नाराज़ हो गए कि मैंने सीक्रेट सर्विस का मुजरिम तुम्हारे हवाले क्यों कर दिया। वाह, होनी चाहिए थी सीक्रेट सर्विस की, हो गई सुपर फैयाज़ की। बस उन्होंने मेरी छुट्टी करा दी काम से। तब से भूख ने डेरा डाल दिया है, और तुम पूछ रहे हो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था। तुम सुनाओ, खैरियत से हो? सलमा भाभी ठीक है, बच्चे बखैरियत हैं? इमरान ने कहा, और सुपर फैयाज़ के चेहरे पर इस बार वाकई इंतहाई हमदर्दी के आसार उभर आए। उसने पतलून की ऊपरी जेब से फूला हुआ बटुआ निकाला। उसे खोलकर उसने बड़े नोटों की एक छोटी सी गड्डी निकाली और फिर उसे इमरान के सामने मेज़ पर रख दिया। ये लो, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम अदाकारी नहीं कर रहे हो, फैयाज़ ने कहा। ये क्या है? इमरान ने हैरत से इस तरह आंखें फाड़ कर नोटों की गड्डी को देखते हुए कहा, जैसे ज़िंदगी में पहली बार नोट देख रहा हूँ। ये 5000 रुपये हैं, इस वक्त तो यही है मेरे पास, ये रख लो, फैयाज़ ने कदर शर्मिंदा लहजे में कहा। उन्हें उठाकर वापस अपने फूले हुए बटुए में रख लो। मेरी तरफ से सलमा भाभी को दे देना। चलो, इस रकम में वो कोई अच्छा सा
क्लोन स्प्रे खरीद लेंगी। मैंने इसका क्या करना है? इससे 10 गुना रकम तो मैंने करियाने वाले की देनी है, 20 गुना उस सुलेमान की तनख्वाह देनी है जो मेरे कपड़े सरेआम नीलाम कराने की धमकी दे गया है। फिर टेलीफोन का बिल है, ड्राई क्लीनिंग का बिल है, सुई गैस, बिजली के बिल हैं। एक जोड़ा कपड़ों का नहीं रहा अलमारी में। गुसलखाने का साबुन तौलिया तक नहीं है और तुम दोस्ती निभा रहे हो ये 5,000 रुपये देकर। शाबाश, रख लो। और सुनाओ, तुम खैरियत से हो? भाभी सलमा तो ठीक है, बच्चे बखैरियत हैं? इमरान ने कहा। कुछ मुंह से भी फूटो, कितनी रकम चाहिए तुम्हें? फैयाज ने चिल्ला कर कहा। मैंने कसम खा ली है कि अब मांगूंगा नहीं, और मैं खा भी कह सकता हूँ, खाने को कुछ है ही नहीं, इसलिए मजबूरी है। बहरहाल तुमने बताया नहीं कि तुम ठीक हो ना? भाभी सलमा कैसी हैं? बच्चे तो बखैरियत होंगे। इमरान का वो खैरियत पूछने वाला टेप फिर चल पड़ा। तुमसे दोस्ती वाकई महंगी पड़ी है, लेकिन अब क्या करूं, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। फयाज ने एक बार फिर जेब से बटुआ निकाला और इस बार उसमें मौजूद एक मोटी गड्डी बड़े नोटों की निकाली और फिर पहले वाली गड्डी के साथ रख दी। अब उसका अपना बटुआ भी पिचक गया था। अब दोबारा मुझसे खैरियत वगैरह ना पूछना, समझे, वरना गोली मार दूंगा। ये 20,000 हो गए हैं, इससे ज़्यादा एक ढेला भी नहीं है मेरे पास। फैयाज ने बटुआ वापस जेब में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, 2-4 रोज़ गुजारा हो जाएगा, मजबूरी है प्यारे। गरीब सरकारी मुलाजिम की आखिर औकात ही क्या होती है? इमरान ने दोनों गड्डियां उठाते हुए इस तरह कहा जैसे फैयाज ने 20,000 की बजाय 2-4 रुपये दिए हों। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो? फैयाज ने गुस्से से उछलते हुए कहा। बकवास नहीं कर रहा, आजकल सरकारी मुलाजमत वाकई काबिल रहम बन गई है। फूफा बड़ी और बटुए से निकले सिर्फ 20,000 रुपये। अच्छा सुनाओ, तुम तो खैरियत से हो ना? भाभी सलमा ठीक है, बच्चे तो बखैरियत होंगे। इमरान ने गड्डियाँ अपने कोट की जेब में दाखिल करते हुए कहा। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा जो तुमने अब बकवास की। फैयाज वाकई बुरी तरह भिन्ना गया था। यानी भाभी की खैरियत पूछना अब बकवास में शामिल हो गया है? कमाल है, 2 हफ्तों में इस कदर इनकलाब आ गया है। चलो मैं बराह रास्त पूछ लेता हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं कहता हूँ तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, निकालो मेरी रकम वापसी। भाड़ में गई हमदर्दी और दोस्ती, मरते रहो भूखे। फैयाज का पारा एक बार फिर बुलंदी पर पहुंच गया। वापस लेना चाहते हो? ले लो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और इंतहाई बड़े नोटों की एक गड्डी निकाली, उसे देखकर मुंह बनाया और साथ सोफे पर बड़ी लापरवाही से फेंक दी। ये 1 लाख रुपए थे। फिर उसने दोबारा हाथ डाला और इसी मालियत की एक और गड्डी निकाल ली, उसे देखकर एक बार फिर मुंह बनाया और फिर उसे वापस रख दिया। फिर कोट की दूसरी जेब में हाथ डाला, उसमें भी इतनी ही मालियत की गड्डी निकल आई। कमाल है, वो इतनी बड़ी मालियत की रकम आखिर गई कहाँ? ये तो वो सब नोट निकल रहे हैं जो आज मैंने सीक्रेट सर्विस का चेक बैंक में भेज कर मंगवाए हैं। अच्छा छोड़ यार, अब इतनी सी रकम भी वापस ले लोगे? चलो मैं तुम्हारी तरफ से किसी यतीम खाने में भिजवा दूंगा। और सुनाओ, खैरियत से हो? भाभी सलमा ठीक है, बच्चे बखैरियत हैं? इमरान ने सोफे पर फेंकी हुई गड्डी उठाकर दोबारा जेब में रखते हुए कहा। तो तुम भूखे मर रहे थे? सीक्रेट सर्विस से तुम्हें मेरी वजह से जवाब मिल गया था और जेब में लाखों रुपए रखे बैठे हो। निकालो मेरी रकम, वरना गोली मार दूंगा। फैयाज ने रिवॉल्वर की नाल इमरान की तरफ करते हुए इंतहाई भिन्नाए हुए लहजे में कहा। अरे डाका, सरकारी वर्दी में डाका, बचाओ बचाओ! इमरान ने यकलक थलक फाड़ कर चीखते हुए कहा। क्या हुआ साहब, कौन है डाकू? अचानक दरवाजे के करीब से सुलेमान की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे दरवाजे पर सुलेमान की शक्ल नज़र आई और दूसरे लम्हे वो भी डाका डाका पुकारता हुआ वापस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। ओह ओह, रोको उसे, रोको उस पागल को! चलो नहीं लेता रकम, रख लो इसे, रोको उसे! फैयाज ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा, क्योंकि वो जानता था कि ये पागल सड़क से आदमियों को बुलाकर अभी उसका तमाशा बनाकर रख देंगे। सुलेमान, प्यारे सुलेमान, अरे वापस आ जाओ, ये तो मेरा प्यारा दोस्त है, सुपर फैयाज, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा
اور دوسرے لمحے سلیمان اس طرح دروازے پر نمودار ہو گیا جیسے وہ دروازے کی طرف جانے کی بجائے وہیں دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اوہ، تو سپر فیاض صاحب ہیں۔ صاحب، یہ تو بہت بڑے سرکاری افسر ہیں، کچھ تو ان کی عزت کا خیال رکھا کریں۔ چائے لے آؤں؟ مگر وہ بتی، دودھ، چینی، وہ تو سب ختم ہے۔ سلیمان نے منہ لٹکائے ہوئے کہا۔ ارے فکر نہ کرو، جہاں ہمارے اتنے پیارے دوست ہوں وہاں کس چیز کی کمی ہے۔ یہ لو 20,000 روپے اور فیاض صاحب کو چائے پلواؤ۔ آخر اتنے بڑے سرکاری افسر ہیں، کبھی کام ہی آ جائیں گے۔ عمران نے جلدی سے کوٹ کی سائڈ جیب سے فیاض کی دی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں نکال کر سلیمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ اتنے بڑے سرکاری افسر ہیں اور صرف 20,000 روپے؟ اچھا چلو، ایک پیالی چائے بن ہی جائے گی، سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تم دونوں مجسم شیطان ہو، ایسے ڈرامے کرتے ہو کہ آدمی خواہ مخواہ تمہارے ہاتھوں احمق بن جاتا ہے۔ اس بار فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی ہنسی بتا رہی تھی کہ وہ بس زبردستی ہی ہنس رہا ہے، ورنہ جو کچھ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ بنے بنائے کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال سپر فیاض سناؤ، تم خیریت سے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس، اب اگر آگے کچھ کہا تو میں حقیقتاً تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں تمہیں پچھلے 2 ہفتوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ تمہارے ڈیڈی مجھے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے چکے ہیں اور تم ہو کہ بار بار خیریت پوچھ رہے ہو؟ فیاض نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھر کا خرچہ بڑھ گیا ہوگا۔ یہ سریا کو 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ سہیلیوں کو تحفے دینا بند کر دے، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ آخر بیچارے ڈیڈی کیا کرے، رشوت وہ نہیں لیتے، سوکھی تنخواہ سے آج کل گزارا ہوتا ہے ہی نہیں۔ عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب رشوت، تنخواہ، گزارا؟ یہ کیا بہکی باتیں کر رہے ہو؟ فیاض نے انتہائی حیرت سے کہا۔ ارے تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ڈیڈی تمہیں پھانسی پر چڑھانا چاہتے ہیں اور فی پھانسی جلادوں کو باقاعدہ الاؤنس ملتا ہے، 50 روپے فی پھانسی اور ساتھ دودھ پینے کے پیسے، علاوہ پارٹ ٹائم بزنس کیسا ہے؟ بس روزانہ 10-12 آدمی پھانسی پر چڑھائیے، مہینے کے بعد خاصا موٹا الاؤنس بن گیا، عمران نے کہا، اور اس بار فیاض کہا مار کے ہنس پڑا۔ اوہ، تو تمہارا یہ مطلب تھا؟ تم سے خدا سمجھے، میں تو محاورے کی بات کر رہا تھا، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ یعنی اصل نہیں، محاوراتی پھانسی؟ اوہ، پھر تو الاؤنس وغیرہ کا چانس ہی ختم ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تک تم نے بہت بکواس کر لی، مجھ سے 20,000 روپے بھی جھاڑ لیے، میری خون پسینے کی کمائی ہے اور تم ایسے لٹا دیتے ہو جیسے میں زمین سے کھود کر لے آتا ہوں۔ اچھا سنو، وہ تمہارا ٹرومین فرار ہو گیا ہے اور سر رحمان نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے، اسے ہر صورت میں گرفتار کروں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تم غائب تھے، فیاض نے کہا، اور ٹرومین کی گمشدگی کا سن کر عمران یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ کب غائب ہوا اور کیسے؟ پوری تفصیل بتاؤ۔ وہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے عمران کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر خاموشی سے چائے کے برتن میز پر رکھنے شروع کر دیے، ساتھ ہی پیٹیز اور چکن سینڈوچ بھی تھے۔ وہ ٹرومین شدید زخمی تھا، اس لیے اسے اسپتال کے ایک مخصوص وارڈ میں رکھا گیا۔ اس کے دونوں بازو اور پیر آہنی ہتھکڑیوں سے پلنگ سے باندھ دیے گئے تھے۔ 2 مسلح سپاہی کمرے کے اندر اور 2 مسلح سپاہی کمرے کے باہر تعینات کر دیے گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے اس کے زخموں کا آپریشن کیا اور پھر ان پر پلسٹر چڑھا دیا۔ اسے ہوش تو اسپتال جاتے ہی آ گیا تھا، لیکن میں نے اس پر مزید پوچھ گچھ اس وقت تک ملتوی رکھی جب تک وہ صحیح طور پر تندرست نہیں ہو جاتا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسپتال سے اسے انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر لے آؤں گا اور پھر اس پر 3rd ڈگری استعمال کر کے اس سے ساری معلومات حاصل کر لوں گا، لیکن اسے اسپتال پہنچے 4 روز ہی گزرے تھے کہ اچانک اطلاع ملی کہ اسپتال پر ایک مسلح گروہ نے حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے وہاں بے تحاشا فائرنگ کی، بم پھینکے، اس سے بے شمار افراد، مریض، ڈاکٹر، نرسیں زخمی ہوئیں اور کافی ہلاک بھی ہو گئے۔ ظاہر ہے شدید افراتفری مچ گئی۔ بعد میں جب یہ ہنگامہ ٹھنڈا ہوا تو یہ پتہ چلا کہ وہ ٹرومین کمرے سے غائب ہے۔ اندر اور باہر موجود 4 مسلح سپاہی مردہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پورے دارالحکومت کی ناکہ بندی کرا دی، لیکن باوجود سر توڑ کوششوں کے آج تک اس ٹرومین یا ان حملہ کو سراغ نہیں مل سکا۔ اخبارات نے اس واقعے پر بڑا واویلا مچایا، اعلیٰ حکام بھی بڑے بگڑے،
लेकिन सारा नज़ला मुझ पर ही गिरा कि तुमने हिफाजत नहीं की। अब तुम खुद बताओ कि मैं और क्या करता। क्या उसकी रूह निकाल कर किसी बोतल में बंद कर लेता? सुपर फैयाज ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। लेकिन उसके साथी वहाँ पहुँच कैसे गए? उन्हें किसने इत्तला दी? इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। तहकीकात के बाद इतना पता चला है कि ट्रोमिन ने एक डॉक्टर से बेहद मिन्नत की कि क्रीमिया में उसके बीवी बच्चे उसके लिए बेहद परेशान होंगे। वो इंसानी हमदर्दी के तौर पर उनका फ़ोन पर रब्ता करा दे। चुनांचे डॉक्टर ने उसका एक हाथ खुलवा दिया और टेलीफोन सेट उसके हाथ में रखवा कर सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहा। ट्रोमिन ने फ़ोन किया। उसके बाद उसके हाथ दोबारा क्लम कर दिए गए और सिपाही भी दोबारा पहरा देने लगे। उसके एक रोज़ बाद कोई हमला हुआ और ट्रोमिन गायब हो गया। सुपर फैयाज ने जवाब दिया। तो अब तुम क्या चाहते हो? इमरान ने संजीदगी से पूछा। तुम उसे तलाश करने में मेरी मदद करो। और क्या चाहता हूँ? सुपर फैयाज ने झिल्ला कर कहा। तुमने रेडियो पर ऐलान कराया, अखबार में इश्तिहार दिया, गली कूचों में लाउड स्पीकरों पर मनादी कराई, मोहल्ले की मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर अपील कराई। बोलो क्या क्या किया तुमने? इमरान ने कहा और सुपर फैयाज ने बेइख्तियार होठ बींच लिए। कोई बच्चा तो गुम नहीं हो गया था कि मैं ऐलान कराता फिरता। सुनो, अब तुमने उसे हर कीमत पर तलाश करना है और बस। फैयाज ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जदीद दौर है। तुम ऐसा करो कि 10-12 लाख के इनाम का ऐलान करो और फिर देखो, एक ट्रोमिन क्या 100 ट्रोमिन हाथ जोड़े तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ना पहुंचे तो ज़बरदस्ती पहुंचा दिए जाएंगे। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं हो गया है? सुनो, मुझे टालने की कोशिश ना करो। कल तक ट्रोमिन का कोई ना कोई क्लू तलाश करके दो ताकि मैं सर रहमान को कुछ मुतमईन कर सकूं। उन्होंने वाकई मेरी जान अजाब में डाल रखी है और अब तो उनके डर के मारे मैं दफ्तर भी नहीं जाता और सारा दिन इधर उधर घूम फिर कर गुजार देता हूँ। फैयाज ने होठ चबाते हुए कहा। वाह, इसे कहते हैं नौकरी, यानी सरकारी जीप, सरकारी पेट्रोल, सरकारी ड्राइवर, और साहब सारा दिन आवारा गर्दी करते हैं। महीने बाद जाकर पूरी तनख्वाह मुआवजा गर्दी अलाउंस भी वसूल करते हैं। यार, तुम ऐसा किया करो कि इस्तीफ़ा दे दो और अपनी जगह मुझे सुप्रिटेंडेंट बना दो। ख्वामखा इतनी मेहनत करने के बाद कहीं जाकर 10-20 हज़ार रुपयों की शक्ल नज़र आती है। इमरान ने कहा और फैयाज के बेख्तियार होठ भींच गए। तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, मैं कल तक मोहलत देता हूँ। कल अगर तुमने कोई क्लू ना बताया तो मैं तुम्हें गोली मारकर खुदकुशी कर लूँगा। बस, ये मेरा आखिरी और कतई फैसला है। फैयाज ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। अगर तुम्हें सिर्फ क्लू चाहिए तो वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी? क्या मतलब? तुम्हें मालूम है कि ट्रोमिन कहाँ है? सुपर फैयाज इमरान की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ बिल्कुल, इमरान ने बड़े ठोस और बाएतमाद लहजे में कहा। तो बताओ फिर देर क्यों कर रहे हो? सुपर फैयाज के चेहरे पर इंतहाई खुशबरे तासुरात उभर आए और आंखों में तेज चमक लहराने लगी। लेकिन फैयाज साहब, आजकल तो कमर्शियल दौर है, मालूमात तो बाकायदा भारी कीमतों में फ़रोख्त होती है। मेरी तरफ से तुम्हें ट्रोमिन मिले या ना मिले, मेरा मसला तो हो गया ख़त्म। अब तुम्हारा मसला है, या तो इस क्लू की कीमत अदा करो या फिर खुद तलाश करते रहो। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अभी तो तुमने मुझसे 20,000 ऐंठ लिए हैं, और क्या लेना है? मैंने टेक्सॉल तो नहीं बना रखी जहाँ से अशरफिया ढाल ढाल कर तुम्हें देता रहूं। फैयाज ने बुरी तरह पैर पटकते हुए कहा। अच्छा, वो 20,000 रुपये, चलो ठीक है, वो उस क्लू का मुआवजा हो गया। अब तुम्हारा एहसान वगैरह नहीं है मुझ पर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कोई एहसान नहीं है, तो बताओ तो सही। फैयाज ने जल्दी से कहा। सुनो, दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिब में जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें बेशुमार गारें हैं। कभी गए हो वहाँ? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। हाँ, कई बार गया हूँ वहाँ तो अक्सर मस्त और दरवेश किस्म के लोग रहते हैं जो दुनिया से बेनियाज होकर
इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। फैयाज़ ने सर हिलाते हुए कहा, अरे तो फिर तो तुम्हें मालूम है ख्वामखा 20,000 रुपये खर्चा कर गए। इमरान ने कहा, क्या मतलब? इन दरवेशों और खुदा बंदों का ट्रोमीन से क्या ताल्लुक़? फैयाज़ ने इंतहाई हैरत अंगेज़ लहजे में कहा, देखो ट्रोमीन का मानी है सच्चा आदमी, और सच्चे आदमी आजकल यही दरवेश और खुदाबस्त ही हो सकते हैं। अब सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुपरिटेंडेंट तो ट्रोमीन होने से रहा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं मुजरिम ट्रोमीन की बात कर रहा हूँ और तुम किसी और चक्कर में पड़ गए हो। सुनो, कल आऊँगा और अगर कल तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फैयाज़ ने इंतहाई घुसीले लहजे में कहा और फिर पैर पटकता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। 20-25 हज़ार बटुए में डालते आना, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन फैयाज़ ने कोई जवाब न दिया और फिर दरवाज़ा खुलने और धमाके से बंद होने की आवाज़ सुनकर इमरान मुस्कुरा दिया। सुलेमान! अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदगी से सुलेमान को आवाज़ दी। जी साहब। सुलेमान भी इंतहाई संजीदगी से कमरे में आकर जवाब देते हुए कहा। वो इमरान के मूड को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए वो मूड के मुताबिक ही चलता था। मेरे जाने के बाद किसी ट्रोमीन का फ़ोन या उसका कोई आदमी मेरा पूछने आया हो? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जनाब, नाम तो किसी ने नहीं लिया, अलबत्ता कई दिनों तक फ़ोन ज़रूर आते रहे। आपका पूछने के बाद नाम बताए बगैर राब्ता ख़त्म कर देते थे, सुलेमान ने संजीदगी से जवाब देते हुए कहा, और इमरान ने सर हिलाते हुए उसे जाने का इशारा किया और फिर सामने रखी टेलीफोन का रिसीवर उठाकर उसने दानिश मंजिल में के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो कल रात ही टीम के साथ एक मिशन की तकमील के बाद वापस पहुंचा था और उसे अब तक ब्लैक ज़ीरो से तफसीलन गुफ्तगू का मौका ना मिल सका। वैसे वो जाते हुए ब्लैक ज़ीरो को हिदायत दे गया था कि जब ट्रोमीन अस्पताल से फारिग हो जाए तो उसे अगवा करके उससे ब्लैक थंडर के बारे में मुकम्मल मालूमात ज़रूर हासिल करे, क्योंकि उसे खुद इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। लेकिन अब सुपर फैयाज़ जो कुछ बता गया था उसने उसे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। इसका तो मतलब था कि इस ट्रोमीन के साथियों ने क्रीमिया से आकर बेपनाह फायरिंग और कत्ल गारत करके उसे रिहाई दिलाई और अपने साथ ले गए। फिर भी उसे यकीन था कि ब्लैक ज़ीरो ने ज़रूर उसे अपने तौर पर तलाश करने की कोशिश की होगी और वो अब उस सिलसिले में ब्लैक ज़ीरो से बात करना चाहता था। X2। चंद लम्हों बाद ही रिसीवर से ब्लैक ज़ीरो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। अभी मुझे सुपर फैयाज़ ने इत्तला दी है कि ट्रोमीन को अस्पताल से अगवा कर लिया गया था। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, यस सर, सुपर फैयाज़ ने आपको दुरुस्त इत्तला दी है। अस्पताल में बेपनाह कत्ल गारत हुई। मुझे जब इत्तला मिली तो मैंने उसे तलाश करने की कोशिश की। बहुत भाग दौड़ के बाद इस कदर क्लू मिला कि हमलावर नालिस्तान सिफारत खाने में गए हैं। इस इत्तला मिलने पर मैंने वहाँ रेड कराया तो पता चला कि नालिस्तानी सफ़ीर एक ज़ख्मी के साथ अपने खुसूसी सिफारती तैयारे में नालिस्तान को परवास कर गया है। उसके साथ 4 आदमी भी थे। नालिस्तान में अपने फ़ॉरेन एजेंट से मालूम हुआ है कि नालिस्तानी सफ़ीर ने वहां पहुंचकर ज़ख्मी और उनके 4 अफराद को चार्टर्ड तैयारे से पर सवार करके अक्रीमिया रवाना कर दिया है। मैंने अक्रीमिया में फ़ॉरेन एजेंट को अलर्ट कर दिया, लेकिन वहां से अब तक ट्रोमीन का कोई सुराग नहीं मिल सका। नालिस्तानी सफ़ीर ने बाद में सिरे से ही इनकार कर दिया कि वो किसी ज़ख्मी या दीगर अफराद के साथ गया है। उसने कहा कि वो एक सिफारती मिशन पर अकेला गया था और अकेला ही वापस आ गया है। ब्लैक ज़ीरो ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, इसका मतलब हुआ कि ट्रोमीन साफ निकल गया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने दरअसल उस वक्त उसे सुपर फैयाज़ के हवाले करके ज़्यादती की थी। उस जैसा मुजरिम भला सुपर फैयाज़ के काबू में कहाँ रह सकता था। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया।
मैं दरअसल उसे नफसियाती तौर पर ये बताना चाहता था कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस उसे कोई अहमियत नहीं देती। अगर मुझे फ़ौरन मुल्क से बाहर ना जाना पड़ता तो मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं उसे सुपर फयाज की कस्टडी से अगवा करके किसी खुफिया अड्डे पर पहुंचा देता और उस पर यही जाहिर करता कि उसे ब्लैक थंडर के किसी दूसरे सेक्शन ने इंटेलिजेंस की कस्टडी से निकाला है। इस तरह लाजमन वो खुल जाता और हम उससे ब्लैक थंडर के बारे में ज़रूरी मालूमात आसानी से हासिल कर सकते। बहरहाल अब तुम्हें पूरी तरह होशियार रहना होगा। जिस कंडे का ये मुजरिम है और जिस टाइप की ये तंजीम है ज़रूर इंतकामी कार्रवाई करेंगे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। असल में आपके लिए ख़तरा ज़्यादा है। हो सकता है कि ये लोग आपके फ्लैट पर हमला करें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। करते रहे हमला। सुपर फयाज अपना फ्लैट वो दोबारा तामीर करा सकता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो भला मेरे पास है ही क्या। एक लौती जान थी, वो भी कब की किसी पर निछावर हो चुकी, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि इमरान के लहजे में बातचीत के आगाज़ में जो संजीदगी थी वो अब बाकी ना रही थी। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? आजकल केस तो है नहीं, क्यों ना इस ब्लैक थंडर तंजीम के खिलाफ काम शुरू कर दिया जाए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ब्लैक थंडर तंजीम ने जिस मिशन पर ट्रोमिन को भेजा था वो तो नाकाम हो गया और फ़िलहाल हमारे पास इसके लिए कोई वाज़ेह क्लू भी नहीं। इसलिए फ़िलहाल तो मैं इंतज़ार करूँगा। अगर ब्लैक थंडर ने फिर कोई एजेंट भेजा तो उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसीवर रख कर एक बार फिर उसने एक तरफ रखी हुई किताब उठा ली। लेकिन अभी वो किताब खोल रहा था कि वो सफ़ा तलाश कर ही रहा था जहाँ उसने पढ़ना छोड़ा था कि पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बज़बान खुद स्पीकिंग, इमरान ने कहा। तो तुम पहुंच गए हो? पाकेशी अली इमरान। दूसरी तरफ से ट्रोबिन की तन से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई सच्चे आदमी, तुम कहाँ चले गए थे? यार, मैंने तलाश में तो कुओं में बांस डलवा दिए थे और 1000 बाल्टी भी कुओं भी पानी निकाल कर रख दिया, लेकिन सच फिर भी ना मिला। सुनाओ, तुम्हारी टांगों और क्या हाल है? कई सच को आइंदा बेसाखियों पर तो खड़ा ना होना पड़ेगा, इमरान ने बड़े खुशगवार मूड में कहा। तुम जिस कदर चहक रहे हो इस कदर ही तुम्हारी चीखें गूंजेंगी। अली इमरान, तुम पाक एशिया से गायब हो गए थे, इसलिए मैं भी खामोश था, लेकिन अब तुम आ गए हो, इसलिए अब ट्रोमिन के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात जहन में रखना कि तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की मौत ट्रोमिन के हाथों मुकद्दर हो चुकी है। ट्रोमिन ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सुना था कि सच कड़वा होता है, लेकिन तुम तो शायद नींव पर चढ़कर बोल रहे हो। वैसे सच के हाथों मौत को हमारे यहाँ शहादत कहते हैं और शहादत किस्मत वालों को नसीब होती है। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम्हारी ब्लैक थंडर तंजीम ने तुम्हें नाकामी पर कोई सज़ा नहीं दी? वो तुम्हारा बड़बोला बॉस ट्रांसमीटर पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने चीफ बॉस से कहा कि मुझे इस वक्त ये नाकामी का दाग धोने का मौका दे दिया जाए और उन्होंने मेरी बात तस्लीम कर ली है और मैंने उनसे वादा किया है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर तबाह करके तुम्हारा कटा हुआ सर मैं उनके पास भिजवा दूंगा और मैंने हर सूरत में अपना वादा पूरा करना है, ट्रोमिन ने कहा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो तुम जानो और वो जाने। अलबत्ता अगर तुम कहो तो मैं अपना कटा हुआ सर खैर से गाली के तौर पर तुम्हें भिजवा दूँ। हम मशरक़ी लोग दूसरों के लिए कुर्बानी देने के बहुत शौकीन होते हैं। वैसे एक बता दूँ कि मैंने जानबूझकर तुम्हें इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया था, वरना मेरा साथी तो कह रहा था कि बस एक गोली से तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए।
لیکن یار مروت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تم زخمی تھے, شکست خوردہ تھے, اس لیے میں نے سوچا کہ تم پر پاکیشیا کی ایک گولی کیوں ضائع کی جائے. تم ایسے آدمی ہو جو خود ہی شرم کے مارے مر جاؤ گے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا, تمہاری یہ فراٹے بھرتی ہوئی زبان جلد ہی بند ہو جائے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میرے آنے تک اپنی وصیت وغیرہ لکھ لو. رومین نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا, میری وصیت میں تو صرف قرض خوانوں کے ناموں کی بس ایک تفصیلی لسٹ ہوگی. کہو تو تمہارے نام کر دوں. ویسے اگر تم اپنی آمد کا شیڈیول بتا دو تو میں ایئرپورٹ پر تمہارا استقبال کروں. کیا خیال ہے؟ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا, موت اپنے شکار کو پہلے ہی شیڈیول نہیں بھیجا کرتی, بس انتظار کرو اپنی موت کا. دوسری طرف سے کہا گیا اور اس نے ساتھ ہی یہ رابطہ ختم ہو گیا. عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ اس طرح کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے جیسے اسے ٹرومین کی اس دھمکی کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہو. ٹرومین نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا. میں جب تک تمہاری گردن اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑ دوں گا مجھے چین نہیں آ سکتا. ٹرومین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے سامنے موجود الماری کی طرف بڑھنے لگا. لیکن ابھی وہ الماری تک پہنچا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار بج اٹھی. ٹرومین ایک جھٹکے سے مڑا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا. یس ٹرومین, ٹرومین نے سپاٹ لہجے میں کہا. وسکی پارٹی ہو رہی ہے ٹرومین, اگر شریک ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ. دوسری طرف سے ایک مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور ٹرومین کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے, کیونکہ اس کوڈ کا مطلب یہی تھا کہ بلیک ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے. وسکی کے ساتھ اور کیا ملے گا ہنی؟ ٹرومین نے پوچھا. جو تم چاہو, تمہارے لیے بھلا کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا. اوکے پھر میں تو ضرور آؤں گا, ٹرومین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. وہ ایک بار پھر مڑا اور اس نے الماری سے ایک خفیہ خانے سے باکس نمبر ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا. اسے اس وقت ہیڈ کوارٹر کی کال آنے پر ذہنی طور پر سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہیڈ کوارٹر کی اس کال کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذمے میں کوئی مشن لگانا چاہتے ہیں, جبکہ ٹرومین سب سے پہلے جا کر پاکیشیا میں اس علی عمران کی گردن توڑنا چاہتا تھا. لیکن ظاہر ہے کال تو اس نے سننی ہی تھی. باتھ روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر سائٹ پر موجود ایریل کو اونچا کیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا. ہیلو ہیلو ٹرومین کالنگ اوور, ٹرومین نے تیز لہجے میں کہا. یس ہیڈ کوارٹر کالنگ اٹینڈنگ یو اوور, دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی. یس سر کیا حکم ہے اوور, ٹرومین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. ٹرومین ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی ہے کہ تم نے پاکیشیا میں اس علی عمران سے فون سے بات چیت کی ہے اور تم اب اس علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو اوور, بھاری لہجے میں کہا گیا. اور ٹرومین کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی, کیونکہ ابھی اسے کال کیے ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ہیڈ کوارٹر کی کال آ گئی. اس کا مطلب یہی تھا کہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اس کا فون باقاعدہ ٹیپ کیا جا رہا تھا. یس باس, آپ کی اطلاع درست ہے اوور, ٹرومین نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. تم بلیک تھنڈر کے گریڈ 1 ایجنٹ ہو. کیا اب تمہارا یہی اسٹیٹس رہ گیا ہے کہ تم پیشہ ور قاتلوں کی طرح چند لوگوں کو قتل کرتے پھرو اوور, باس کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی. باس یہ تو میرا نجی مشن ہے اور پھر میں نے ہیڈ کوارٹر سے وعدہ بھی کر رکھا ہے اوور, ٹرومین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہمیں تمہارے وعدے کا بخوبی علم ہے اور اس وعدے پہ تمہاری زندگی کو بھی بخش دیا گیا تھا, لیکن ہیڈ کوارٹر نے اس کے سارے کیس کی تفصیلی چیکنگ کرائی ہے, کیونکہ تم جیسے ایجنٹ کی ناکامی کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیڈ کوارٹر کی توقع سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. اور اب بلیک تھنڈر کے بارے میں انہیں بھی معلوم ہو چکا ہے. اس تفصیلی چیکنگ سے جو تفصیلات معلوم ہوئی ہیں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں, ان پر ہیڈ کوارٹر کو بھی شدید حیرت ہوئی ہے. بلیک تھنڈر جیسی بے شمار بین الاقوامی تنظیموں کا خاتمہ اس علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ریکارڈ میں موجود ہے. اس ریکارڈ کی چیکنگ کے بعد ہیڈ کوارٹر نے نہ صرف تمہاری ناکامی کو معاف کر دیا ہے بلکہ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ تمہارا وہاں سے بچ کر نکل جانا ہی تمہاری کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوارٹر نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اور اس علی عمران کا خاتمہ ہیڈ کوارٹر کا نمبر 1 مشن ہے, کیونکہ یہ خطرناک گروپ اگر ہیڈ کوارٹر کے خاتمے کے لیے چل پڑا
तो फिर हेड क्वार्टर के लिए शदीद तरीन मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हेड क्वार्टर ये भी नहीं चाहता कि तुम इस अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हेड क्वार्टर के बारे में किसी किस्म का क्लू मिल सके। और चूँकि अंदर इंतकामी जज्बात मौजूद तुम्हारे अंदर इंतकामी जज्बात मौजूद है, इसलिए ज़ाहिर है कि तुम फौरी और बराह रास्त एक्शन करोगे। और अगर तुम अगर इस अली इमरान के काबू में आ गए तो यकीनन वो तुमसे हेड क्वार्टर के बारे में तफसीलात मालूम करने की कोशिश करेगा। और अब नंबर 1 एजेंट बनने के बाद तुम्हें हेड क्वार्टर के बारे में पहले से ज़्यादा मालूमात हासिल है, इसलिए हेड क्वार्टर तुम्हें इस मिशन पर फ़ौरन भेजना चाहता है। ओवर। बॉस ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा और ट्रोमिन की आंखों खींच उगड़ गई और होठ भींच गए। बॉस, ये मेरे साथ ज़्यादती है। इसका मतलब है कि ट्रोमिन को उस अहमक के मुकाबले में कब हैसियत दी जा रही है। ओवर। ट्रोमिन के लहजे में ना चाहते हुए भी तलखी आ गई। तुमने पूरी बात तो सुनी ही नहीं, पहले बात सुना करो फिर तबसरा करा करो। ओवर। बॉस ने गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी बॉस, फरमाइए। ओवर। ट्रोमिन ने कहा, तुम उस इमरान को शिकस्त देना चाहते हो और हेड क्वार्टर इस इमरान के साथ साथ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा भी चाहता है। इसलिए हेड क्वार्टर ने फैसला किया है कि तुम इस अली इमरान के खात्मे के लिए मादम फोना को हायर किया जाएगा और साथ ही पाकिस्तान में एक ग्रुप भी अटैच कर लिया गया है। इस ग्रुप का सरबराह लारिक है। मादम फोना तुम्हारे साथ इस मिशन पर जाएगी और सारा काम वो करेगी। तुम सामने नहीं आओगे तो तुम सिर्फ इस वक्त सामने आओगे जब तुम देखोगे कि मादम फोना या उसके कोई भी साथी नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि तुम ग्रेड 1 एजेंट हो। ग्रेड 1 एजेंट उस वक्त सामने आते हैं जब और कोई चारा ना रहे। ओवर। बॉस ने कहा, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ सका। मुझे आपने कहा था कि हेड क्वार्टर ने मुझे फ़ौरन भेजना नहीं चाहता, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं मादम फोना के साथ जाऊं मगर सामने ना आऊं। ये भला कैसे मुमकिन है। ओवर। ट्रोमिन ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि तुम इस मिशन के निगरान के तौर पर अलहदा जाओ और बतौर ग्रेड 1 एजेंट सिर्फ उस वक्त सामने आओगे अगर फोना नाकाम हो जाती है और उससे पहले नहीं। और अगर मादम फोना कामयाब हो जाए तो तुम्हें बिल्कुल सामने आने की इजाज़त ना होगी। और चूँकि ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ कि फोना के साथ तुम्हारे पुराने ताल्लुकात है, इसलिए मेरी सिफारिश पर हेड क्वार्टर ने फोना का इंतखाब किया है। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने तौर पर फोना के साथ मिलकर इस मिशन पर इस तरह काम करो कि हेड क्वार्टर का कोई एतराज़ भी ना हो और तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाए। ओवर। बॉस ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं खुद फोना से मिलकर सारी एडजस्टमेंट कर लूँगा। ओवर। ट्रोमिन ने ज़िद करते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम बेशक फोना के साथ मिलकर इस मिशन को तकमील तक पहुंचाओ, लेकिन ये बता दो कि तुम्हारी नाकामी नाकाबिले माफ़ी होगी। ओवर। बॉस ने कहा और ट्रोमिन के होठ भींच गए। आप बेफिक्र रहें बॉस, आप देखेंगे कि इस बार ट्रोमिन इन लोगों का क्या हशर करता है। हेड क्वार्टर को भी ट्रोमिन की असल सलाहियतों का इल्म हो जाएगा। ओवर। ट्रोमिन ने मुसरत भरे लहजे में कहा, ओके, बहरहाल हमें तो इस इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा मकसद है, किसी भी तरह हो। ओवर। बॉस ने कहा, थैंक यू बॉस। ओवर। ट्रोमिन ने कहा और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया गया। ट्रोमिन ने एक तवील सांस लिया था क्योंकि इस बार वो बॉस के एतमाद पर पूरा उतरेगा। बॉक्स नुमा ट्रांसमीटर ऑफ करके वो बाथरूम से निकला और फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद ही रब्ता कायम हो गया। हेलो मादम फोना हाउस, एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ट्रोमिन बोल रहा हूँ, फोना से बात कराओ। ट्रोमिन ने करख्त लहजे में कहा, ओ यस सर, वेट फॉर 1 सेकेंड। दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद की खामोशी के बाद एक मुतरन्नुम और लोजदार नुस्वानी आवाज़ रिसीवर पर उभरी। हेलो ट्रोमिन, फोना बोल रही हूँ, आज कैसे मेरी याद आ गई। फोना की मुस्कुराहट बड़ी भरी आवाज़ सुनाई दी। फोना, ब्लैक थंडर ने जिस मिशन के लिए तुम्हें बताया है कि वो दरअसल मेरा मिशन है, मैंने हेड क्वार्टर से बात कर ली है और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? ट्रोमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिस्तान वाले मिशन की बात कर रहे हो ना, जहाँ एक शख्स अली इमरान का खात्मा करना है? मैंने फोना ने चौंक कर कहा, हाँ वही।
میں نے اس علی عمران سے ذاتی انتقام لینا ہے، اور تم جانتی ہو کہ ٹرومین جب انتقام پر اتر آئے تو کیا ہوتا ہے۔ ٹرومین نے کہا، اوہ ویری گڈ، پھر تو میں یہ مشن بھی میرا ذاتی ہو گیا۔ ویری گڈ، مجھے تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے واقعی لطف آئے گا۔ ویسے مشن ملنے پر میں نے اس کے بارے میں جو تحقیقات کی ہے اس سے مجھ پر ایسے راز کھلے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ مجھ سے تو بچ کر نہیں جا سکتا، لیکن ایک شرط ہے کہ ٹرومین کہ تم پہلے مجھے کوشش کرنے دو گے، کیونکہ اس مشن میں میری کامیابی مجھے بے حد فائدہ دے گی۔ میں تمہاری تنظیم کے ساتھ مستقل اٹیچ ہو جاؤں گی۔ فونا نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پہلے تم اپنی پوری کوشش کر لینا، جب تم کہو گی میں تبھی حرکت میں آؤں گا۔ میں اپنا گروپ وائٹ سن ساتھ لے جاؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ٹرومین نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، پہلے تو وہاں کے لارے گروپ کی ٹپ دی گئی ہے۔ بہرحال میں تو مشن پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ بولو کب چل رہے ہو؟ فونا نے کہا، میں نے پاکیشیا میں داخل ہونے کا ایک پروگرام مرتب کیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے روکنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس نے وہاں نگرانی کا جال بچھا دیا ہوگا۔ اس لیے ہم پہلے پاکیشیا کے ہمسایہ ملک کافرستان جائیں گے اور پھر وہاں سے لانچ کے ذریعے پاکیشیا میں داخل ہوں گے اسمگلروں کے گروپ میں۔ کافرستان میں ایک گروپ ایسا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان اسمگلنگ کا بزنس بے حد کامیابی سے کر رہا ہے۔ اس کا چیف لارڈ میرا بہترین دوست ہے۔ اس طرح ہم کسی کے نظروں میں آئے بغیر وہاں پہنچ جائیں گے۔ ٹرومین نے کہا، نہیں ٹرومین، اس طرح تو ہمیں مسلسل وہاں پولیس اور اینٹی اسمگلنگ اسٹاف سے چھپ کر رہنا پڑے گا، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم وہاں دھڑلے سے کام کریں۔ ہم سیاحوں کے روپ میں وہاں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تم میک اپ کر لینا، جبکہ میں ویسے ہی جاؤں گی کیونکہ وہ لوگ صرف تمہیں ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں۔ فونا نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کس طرح کام کرتی ہو۔ چلو جیسے تم کہو ویسے ہی ہوگا۔ تم بتاؤ، تم تیار ہو؟ میں آج تمام بندوبست کر لوں گا۔ کل ہم پاکیشیا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ویسے وہ فونا کی صلاحیتوں کو اچھی طرح واقف تھا۔ فونا ایک ریمے میں وائٹ ڈیتھ کے نام سے مشہور تھی اور انتہائی مہنگا معاوضہ لینے والی پیشہ ور قاتلہ بھی تھی۔ اس کے ریکارڈ میں ایسے قتل موجود تھے جو بظاہر ناممکن سمجھے جاتے تھے، لیکن فونا نے ان لوگوں کو ایسی منصوبہ بندی سے قتل کر دیا تھا کہ دنیا انگشودہ رہ گئی تھی۔ فونا بظاہر ایک خوبصورت اور نوجوان بیوہ تھی جسے سب مادام فونا کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن ٹرومین جانتا تھا کہ فونا دراصل انتہائی ذہین، شاطرانہ ذہن رکھنے والی حد سے زیادہ سنگ دل عورت ہے، لیکن وہ اس عمران کے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو بھی جانتا تھا۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ فونا وہاں کامیاب نہ ہو سکے گی اور آخرکار یہ مشن ٹرومین کے ہاتھوں میں ہی مکمل ہوگا۔ اس طرح ہیڈ کوارٹر کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ ٹرومین واقعی گریڈ 1 ایجنٹ بننے کے لائق ہے۔ ویسے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فونا کو پوری طرح کام کرنے کا موقع دے گا تاکہ ہیڈ کوارٹر کو کوئی بھی شکایت پیدا نہ ہو سکے۔